Good morning, everyone. Yesterday, we have started chapter number 2 of business studies, right? We have completed, day before yesterday, we have started, right? Yesterday, we have completed the topic joint into family business and features of partnership. Yesterday, we have started the topic partnership and we have discussed about its features. If anyone is having any doubt up to that part, then you can ask me. We have completed the 7 features of partnership. Number 1, formation, that partnership business starts under the registration of Partnership Act 1932. Then after we have discussed that liability of all the partners is unlimited. Risk is shared by all the partners in the ratio decided in partnership deed. All the partners are allowed to take part in decision making. The firm can continue until all the partners desires to do so, and number of partners, minimum number is 2. Maximum number, Partnership Act haven't mentioned any number, but according to Companies Act, maximum 50 people can be a part of partnership business. And there is a mutual agency relationship between all the partners. Each partner is an agent as well as owner of the firm. Now, I have given you a practice task activity also. I hope all of you have done the solutions, and I have received the solutions from few students only. Rest all are, you are supposed to send me the solutions by today only. Now have a look. Merits of partnership. मैंने आपको बोला था कि आप इसको रीड करके रखेंगे. Who can explain the first point? Who can read and explain the first point? अगर आपने रीडिंग की हो और आपको समझ में आ गया हो कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की क्या क्या बेनिफिट्स है. So benefit number 1, easy to form. Is there anyone who can read and explain the point in the class? No? घर पे पढ़ाई नहीं की है? Have a look. I am explaining it for you. What is the point? Easy to form. ये कह रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए. नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड. इवन रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं. It is not compulsory to get the firm registered. Completely optional है. आप चाहें तो registration करवाएं, चाहें तो ना करवाएं. So merit number 1, it is very easy to start a partnership business. We don't need to register the firm. We can simply start it when we are having 2 or more people together. Right. Now have a look on second point. It is also very simple. Balanced decision making. यानी बहुत ही बैलेंस्ड वे से आप अपने सारे डिसीजंस ले सकते हो. सारे पार्टनर्स अपने बीच में वर्क को प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं. अपने स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग वो वर्क का डिवीजन कर सकते हैं. और जब वर्क का डिवीजन होगा तो वर्क में स्पेशलाइजेशन आएगा और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी. When I was a sole trader, तो मेरी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल थी, राइट. मैं बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक काम कर सकती थी. बहुत ज्यादा मैनेजरियल. सेकेंड पॉइंट वापस समझा दें, अभी समझाते हैं. सेकेंड पॉइंट को ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो हैव अ लुक. क्या कह रहे हैं ये आपको सेकेंड पॉइंट में बताना चाह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग बहुत बैलेंस चलता है. यानी हर काम के लिए हर पार्टनर को टाइम मिल जाता है, उसके स्किल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. देखिए, एक तो आप खुद अकेले वर्क कर रहे हैं और एक जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपके साथ एक टीम है. तो कब वर्क बढ़िया होगा? डेफिनेटली जब हमारे पास टीम है. हम हर काम में डिवीजन कर लेंगे कि भाई ये वाला काम आपको संभालना है, ये काम आपको संभालना है, ये काम आपको संभालना है. जब ये डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? पार्टनर्स बहुत अच्छे से अपना वर्क एग्जीक्यूट कर पाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि हमने अपने स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड कर दिया. एक पार्टनर को कह दिया यू हैव टू हैंडल ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड विद मार्केट. एक को कह दिया यू हैव टू हैंडल ऑल द वर्क ऑफ फैक्ट्री. एक को कह दिया कि आपको एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सारा काम करना है. एक को कह दिया आपको सारा फाइनेंस संभालना है. तो हमने वर्क को आपस में डिवाइड कर लिया. जब हमने आपस में डिवाइड कर लिया तो हमारे काम में क्या आया? स्पेशलाइजेशन आया. तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही बैलेंस तरीके से सारा काम होगा और आपके काम में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा. थर्ड, सोल ट्रेडर के कंपैरेटिवली पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़े से ज्यादा होंगे. वहां पे एक इंडिविजुअल फर्म था तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे. यहाँ पे लोग ज्यादा तो पैसा भी थोड़ा सा ज्यादा. तो आपको क्या लिखना है? देखिए, In partnership firm, all the partners contribute some amount of capital. सभी कुछ ना कुछ पैसा contribute करेंगे.
As a result, the financial resources of partnership are larger than the sole proprietorship firm and joint Hindu family business. उन दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा है. कंपनी से कंपेयर करोगे तो अभी भी कम है. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के कंपैरेटिवली पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज हैविंग लेस फंड. बट अगर हम बात करें कि सोल ट्रेडर और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कंपैरेटिवली, तो यहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेस थोड़े से ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस. सिंपल सा पॉइंट. 3 पॉइंट हमने कर लिए. इजी फॉर्मेशन, बैलेंस डिसीजन मेकिंग एंड लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस. आगे देखिए जरा. रिस्क शेयरिंग. सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली वन सिंगल इंडिविजुअल हैज टू बियर ऑल द रिस्क. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ रिस्क आपके साथ साथ आपके पार्टनर्स भी शेयर करेंगे. ठीक है, आपको सबको मिलके रिस्क शेयर करना है. जिस रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में आप रिस्क भी शेयर करेंगे. तो किसी एक पर्सन के ऊपर प्रेशर नहीं है कि सारा लॉस उसी को फेस आउट करना है. नो, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है. आप सभी मिलके म्यूचुअली आपस में काम कर रहे हैं तो आप रिस्क भी आपस में शेयर कर सकते हैं. इससे क्या होगा, पार्टनर्स को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे. चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था ना, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. रिस्क बियर करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा. तो प्रॉफिट के लिए रिस्क उठाने की हिम्मत चाहिए. और हिम्मत तब आएगी जब हमारी टीम है जो कहेगी कि चलो लॉस भी हुआ तो हम आपके साथ खड़े हैं. राइट. तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया. नेक्स्ट वन. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी थी, वैसे ही पार्टनरशिप में आपको अपने अकाउंट्स जनरल पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है. कंपनी में बताना पड़ता है. आप अगर गूगल पे सर्च करोगे ना रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट तो आपको मिल जाएगी. यानी जितनी भी कंपनीज है उनको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पब्लिश करनी होती है. पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में ऐसा नहीं होता. तो एक बेनिफिट आपको मिला, सीक्रेसी. क्या लिखा हुआ है, हैव अ लुक. The partnership firm is not required to publish its accounts. Therefore, the affairs of partnership firms remain secret. अपने accounts publish करने की जरूरत इनको नहीं होती. Publish नहीं करना यानी general public को नहीं दिखाना. ठीक है. On the other hand, all the activities of partnership firm are carried on by the partners. Only they can take all the major decisions, so there are no chances of leakage of trade secret. सारे डिसीजन कौन ले रहा है, पार्टनर्स ले रहे हैं. तो जब सारे डिसीजंस पार्टनर्स ही ले रहे हैं तो कोई भी ट्रेड सीक्रेट लीक नहीं होगा. किसी भी सीक्रेट का लीक होने का चांसेस नहीं. अब वैसे देखा जाए तो हो भी सकता है. हमें तो थ्योरेटिकली लिखना है कि पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं. अगर दो पार्टनर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हो सकता है कोई एक पार्टनर आपके बिजनेस सीक्रेट्स बाहर लीक कर दे. बट जनरली ऐसा नहीं होता है. बढ़िया टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है. तो अगर मैं आपको मेरिट्स लर्न करवाऊं तो क्या क्या बेनिफिट्स है. नंबर 1, इट इज क्वाइट इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस. Balanced decision making, as all the partners can divide the work among themselves. Larger financial resources comparatively ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि लोग ज्यादा है. Risk sharing, all the people can share the risk among themselves and there is secrecy in the business. Risk sharing में आपको एक और चीज लिखनी है कि because the partners are allowed to share the risk, they are able to share the risk, they are motivated to take more riskier project. है ना, वो motivation मिलेगा उनको. चलिए, anyone any doubt in any point of merits? किसी पॉइंट में डाउट आ रहा है तो बताएं. इजी सी टॉपिक है, बस लर्निंग थोड़ी सी आपको पॉइंट्स की करनी पड़ेगी. जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं बेटा बी ऑन टाइम. टॉपिक की स्टार्टिंग मिस कर देंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. डी मैरिज फर्स्ट पॉइंट आई विल नॉट एक्सप्लेन. कौन एक्सप्लेन करेगा बताइए. हमने तो इसको सोल ट्रेड में भी एक्सप्लेन कर दिया और HUF में भी कर दिया था. आप में से who will be explaining the first point? Raise your hands. Be quick. थोड़ा जल्दी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्या मीनिंग होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का? स्लो चल रही है भाई. गिव इट अ ट्राई. जानवी. Every pattern has unlimited liability. हर किसी को liability है equally. अनलिमिटेड का क्या मीनिंग होता है? क्या पढ़ा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में? अगर किसी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो इसका क्या मीनिंग है? यस, कीर्ति विल टेल अस. हाँ जी कीर्ति.
कीर्ति, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम अनलिमिटेड लायबिलिटी वो होती है जो मतलब एक जने को अपने जॉइंट हिंदू में से ये था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे देता है लायबिलिटी के लिए, मतलब मीनिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस की तो असेट्स दे ही देता है वो, बट पर्सनल प्रॉपर्टी भी देता है। बिल्कुल, देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी जब भी आपको मिले तो उसका मीनिंग सिंपल सा है। उसका मीनिंग ये है कि इन केस ऑफ लॉस, अगर आपकी बिजनेस असेट सफिशिएंट नहीं है ना, तो जो भी पीपल है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम किया जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? इसके बाद कभी भी किसी को भी अनम्यूट करके पूछूं तो आपका आंसर रेडी होना चाहिए आपके पास। Unlimited liability means in case of loss, personal property can also be claimed. अगर आपकी बिजनेस की एसेट सफिशिएंट नहीं है तो क्रेडिटर्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी अपना अकाउंट सेटल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। The liability of all the partners is unlimited. In case of losses, the partners will not only lose their business property, but creditors can claim over their personal property also to get their accounts settled. अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का क्लेम भी देना पड़ सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्स। हमने यहाँ पे तो पढ़ा था लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स, बट यहाँ वापस पढ़ रहे हैं लिमिटेड रिसोर्स। अब ये लार्जर किसके कंपैरेटिवली? सोल ट्रेडर और जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। जैसे मैं बात करूं कि एक स्टूडेंट है एक्स नाम का, उसके 70 मार्क्स आए, तो जब हम उसकी तारीफ करेंगे तो हम कहेंगे कि ए और बी, जिनके ए के आए हैं 40 और बी के आए हैं 50, तो हम कहेंगे ए और बी के कंपैरेटिवली इस बच्चे के ज्यादा मार्क्स आए हैं। लेकिन किसी को बुराई करनी होगी तो वो क्या कहेगा? y और z, सपोज y के आए हैं 80 और z के आए हैं 90, तो हम कहेंगे इनके कंपैरेटिवली थोड़े से कम है ना? तो रिसोर्सेज ज्यादा किसके कंपैरेटिवली है? सोल ट्रेड और HUF। लेकिन कम किसके कंपैरेटिवली है? कंपनी के कंपैरेटिवली। देखिए क्या लिखा हुआ है। There is restriction on number of partners, hence contribution in terms of capital investment is not sufficient for large scale. बहुत बड़े लेवल पे आप काम नहीं कर पाओगे। As a result, partnership firms face problem of expansion beyond a specific size. एक लिमिटेड साइज तक तो आपका बिजनेस आराम से चलेगा, बट बियॉन्ड अ साइज आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस की क्या रहेगी? लिमिटेशन रहेगी। तो डीमेरिट नंबर 1 अनलिमिटेड लायबिलिटी, डीमेरिट नंबर 2 लिमिटेड रिसोर्सेस। थर्ड कौन समझा रहा है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े। हु विल एक्सप्लेन? क्या आप लोगों में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, घर पे भी हो जाते हैं भाई बहनों के साथ, तो बिजनेस में तो होने ही है। रेज योर हैंड्स फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। Yes, Janvi, will you explain? You are not audible, beta. Yes, Yugansh. मैम पार्टनरशिप में जो दो मेंबर्स होते हैं उन दोनों की जो वो मंजूरी है वो दोनों होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स मींस मैम जो पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म में होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं, डिफरेंट फैमिलीज के होते हैं, और देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंट ओपिनियन। मैम एक की चॉइस अलग है, एक की चॉइस अलग है, तो ये बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है। और बिल्कुल। द पार्टनर रीड करिए। the partners adopt a rigid attitude, then it may lead to the conflict among the partners. बिल्कुल। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग फैमिली से आए हैं, अलग अलग तरीके की सोच के लोग हैं, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर कोई एक पार्टनर रिजिड एटीट्यूड फॉलो कर लेता है कि मेरी ही बात मानो, ऐसे करना है मतलब ऐसे ही करना है, ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आपके साथ भी तो होते हैं, आप लोग अगर कोई मिल बांट के काम कर रहे हैं और उसमें किसी ने कह दिया नहीं ऐसे करो, और आपका ओपिनियन अलग है, तो डेफिनेटली या तो एडजस्ट कर लेंगे दोनों मिलके, या फिर क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो पार्टनरशिप में लड़ाई के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी। एक पार्टनर की डेथ हो गई या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया,
या पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इनकेपेबल हो गया, तो ऐसे में वो कभी भी डिमांड कर सकता है कि इस बिजनेस को ही बंद कर दीजिए। वो क्या डिमांड कर सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन यानी कि बंद कर दिया जाए, आगे कंटिन्यू नहीं करना। यानी हम 5 जने मिलके काम कर रहे थे, मैंने कह दिया मेरी आपसे लड़ाई होगी, मैंने कहा आप इस बिजनेस को बंद करो, तो ऐसे में आपको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। दोबारा शुरू करना चाहते हो तो दोबारा यू विल हैव टू फ्रेम अ डीड, और डीड में आपको दोबारा सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करनी है। तो काफी टफ है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के ये ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट, अच्छा एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज मैंने आपको कहा कि, चलो मैं नहीं कह रही हूँ, आपका नेबर कह रहा है, ठीक है, आपका नेबर आपको कह रहा है कि उसके 97% आए 12th क्लास में। कहीं आपने ये चीज न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ी, उसकी मार्कशीट कहीं नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, क्या आप बिलीव कर लेंगे? बताइए भारती, आप बिलीव कर लेंगे क्या? वेट फॉर अ सेकेंड। यस भारती। नो मैम। नो, कब बिलीव करेंगे लक्ष्य पारेख? लक्ष्य पारेख, आप बताइए। लक्ष्य मोदी, when will you believe? मैम जब उसके पास वो पूरा सर्टिफिकेट होगा मैम। बिल्कुल, जब उसके पास मार्कशीट होगी और वो हमें अपनी मार्कशीट दिखाएगा तो ही तो हम बिलीव करेंगे। अब देखिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में हमने मेरिट्स में पढ़ा सीक्रेसी, वहां पे हमें पढ़ा कि इनको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, अपने अकाउंट्स दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर ये अपने अकाउंट्स दूसरों को नहीं दिखा रहे तो क्या लोगों को विश्वास होगा कि इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है? डेफिनेटली नो। ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है या हम इतने बेनिफिट में, लोग इस पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और अपने एनुअल अकाउंट्स नहीं दिखा रही। इसको रीड करें, आपको एग्जैक्ट यही लिखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछ लिया व्हाई पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो आपको लिखना है द पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म because the accounts and annual reports of firm are not published, so people do not have trust in their dealing. अकाउंट्स पब्लिश ही नहीं किए हैं, आपने बताया ही नहीं है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, खाली आप बोल के बता रहे हो, तो लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट हमने कल पढ़ा ही था, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर ने कोई भी काम कर दिया तो वो आप सब पे बाइंडिंग है। क्लास के एक बच्चे ने शैतानी कर दी तो फिर अनाउंस क्या होगा? 11th कॉमर्स में ऐसा हुआ। एक बच्चे का नाम नहीं लेंगे, 11th कॉमर्स ऐसी है, 11th कॉमर्स में ये काम होता है। तो यानी कि सब जने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट बाकी सभी पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग है। तो एक डिसऑनेस्ट पार्टनर ऐसा भी कर सकता है कि अपने पर्सनल गेन के लिए फर्म को कोई नुकसान पहुंचा दे, राइट? चलिए अब हम लर्निंग करते हैं, थोड़ी सी लर्निंग करते हैं और रिकॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर शुरू करने से पहले, टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड द 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैसी कैसी होती है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड द जॉइंट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर के ओनर प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं और वो काम करते हैं विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन गोल क्या रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पब्लिक सेक्टर वाले काम करते हैं विद द मेन मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज। और जॉइंट सेक्टर होता है जिसमें कंबाइंड ओनरशिप होती है और टारगेट होता है दोनों, सोशल वेलफेयर भी करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना है। फिर हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स पढ़ने शुरू किए जिसमें से हमने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया, थर्ड हमारा रनिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? हु विल टेल? कौन एक ओवरव्यू दे सकता है सोल ट्रेड बिजनेस पे? ओके, करण अरोरा विल टेल अस। यस करण। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, सिंगल जने का बिजनेस। बिल्कुल, एक सिंगल इंडिविजुअल का बिजनेस, एक अकेला संभाल रहा है। कुछ एक दो बातें और बता पाएंगे? सिर्फ एक ओनर ही? हाँ, एक ही दो ओनर बातें है। जैसे
बिल्कुल एक ही ओनर है युगांश, और क्या होगा, एक ही ओनर है तो? मैम ऑनर सिंगल है तो उसको डिसीजन लेगा वो पूरा, किसी से उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। ओके जानवी, और क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिल्कुल, अकेले काम कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। आपको लॉसेस अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी पे करने पड़ सकते हैं। और क्या हो सकता है करण गुप्ता? मैम इसके अंदर मैम मैम कोई रिस्क होएगा तो हमको ही करना पड़ेगा, रिस्क सारा हमारे ऊपर बिल्कुल, आएगा। हम इंडिविजुअल रिस्क बियरर होंगे और हम ही सारे प्रॉफिट के रिसिपिएंट होंगे, है ना। रिस्क भी सारा हमारा और प्रॉफिट भी सारा का सारा हमारा होगा। और रिसोर्सेस कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा, इट इज अ बिजनेस दैट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ single individual, and being a single individual he will be taking all the decisions. Formation of this business is quite simple, बहुत से ही business form हो सकता है। तो देखिए इसके features हमने discuss किए थे, single ownership, formation and closure, that was quite easy, unlimited liability, all the risk will be beared by an individual and profit भी सारा उसी का होगा। वन मैन कंट्रोल रहेगा, नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन साथ साथ चलेंगे, कंटिन्यूटी नहीं होगी बिजनेस की और बिजनेस का साइज बहुत ही स्मॉल होगा। मेरिट्स हमने पढ़ लिए थे, क्विक डिसीजन, कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी, डायरेक्ट इंसेंटिव, मैं काम कर रही हूँ तो मेरे एफर्ट और रिवॉर्ड में डायरेक्ट लिंक, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मुझे प्राउड फीलिंग रहेगी और इजीली फॉर्म और डिसॉल्व कर सकते हैं। डीमेरिट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे, बिजनेस की लाइफ लिमिटेड होगी, मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होंगे, एक चीज अनलिमिटेड होगी जो है लाइबिलिटी। Okay, joint Hindu family business. Who will give an overview of joint Hindu family business? कौन बता रहा है? Anyone else? और कौन बता सकता है? Give it a try. Yes, Yugansh. मैम जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब जहाँ पे घर के लोग ही काम कर रहे हैं, दादा पापा ताऊ जी। बिल्कुल, दादा पापा ताऊ जी ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्या दो कंडीशंस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की? Who will tell me? Other than Yugansh, who will tell me what are the two necessary conditions of joint Hindu family business? Yes, Janvi. The main head of the family own the business. Yes, the main head will be treated as karta and other members will be treated as co-partners. ये एक additional information थी। दो necessary conditions है। Pankaj will tell us. Yes, Pankaj. Ma'am, Yes, minimum Pankaj. 2 male required and an ancestral property. बिल्कुल, minimum 2 male members must be there and some ancestral or parental property must be there. तो क्या होगा? Undivided Hindu family start हो जाएगा। कौन सा एक्ट लग रहा था? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हेड ऑफ द फैमिली विल बी द हेड ऑफ बिजनेस, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और जिसे हम करता कहेंगे। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप, अ बिजनेस व्हिच इज स्टार्टेड बाय 2 और मोर पीपल, लीगल बिजनेस होना चाहिए। एक्ट कौन सा लग रहा था? पार्टनरशिप एक्ट 1932। सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी के फीचर्स हमने अभी अभी रिवाइज किए थे। मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने अभी अभी पढ़े हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। 3 तरीके की पार्टनरशिप होती है। नंबर 1, पार्टनरशिप एट विल। विल यानी इच्छा। ऐसी पार्टनरशिप जो पार्टनर्स तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उनकी इच्छा हो। पार्टनर्स की इच्छा के अकॉर्डिंग चलने वाली पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। The partnership formed for an indefinite period is known as partnership at will. This type of partnership exists at the will of partners and comes to an end whenever partners desire to do so. ये कह रहे हैं पार्टनरशिप एंड विल वो पार्टनरशिप है जिसका कोई पीरियड फिक्स नहीं है, कितने ड्यूरेशन के लिए फिक्स नहीं। हमने एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए इसको स्टार्ट किया, कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक सारे पार्टनर्स की इच्छा है।
जिस दिन भी किसी भी पार्टनर को लगा कि अब हमें कंटिन्यू नहीं करना है, वो डिसोल्यूशन का नोटिस देगा और पार्टनरशिप वहीं खत्म हो जाएगी। डिसोल्यूशन यानी फर्म को बंद करना, बिजनेस को डिसॉल्व करना यानी बंद कर देना, ठीक है। तो सिंपल सा, ऐसी पार्टनरशिप जो इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टार्ट हुई, एक पार्टनर ने जैसे ही डिसोल्यूशन करने का सोचा, उसने नोटिस दिया और पार्टनरशिप एंड हो गई। कल मैंने आपको बताया था एंड कैसे होती है, उससे रिलेटेड अकाउंट्स आप पढ़ोगे अगले साल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, नाम से ही समझ आ रहा है, हमने एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए आपस में पार्टनरशिप की है। हमने एक लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे हॉस्टल में रूम शेयर करते हैं ना, एक फिक्स टाइम के लिए, पीजी में रूम शेयरिंग होती है फिक्स टाइम के लिए, वैसे the partnership formed for a specific period of time, say 3 years or 5 years etc, is known as fixed period partnership. आपने फिक्स टाइम के लिए उसको स्टार्ट किया है, ये अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी जैसे ही आपका स्पेसिफिक टाइम खत्म। हमारा जो डिसाइडेड टाइम था वो टाइम खत्म हुआ तो हमारी पार्टनरशिप अपने आप ही क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अगर हम उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें अपनी डीड को चेंज करना पड़ेगा और हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। चलिए युगांश आप इसको रीड कर दीजिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। The partnership which is formed to carry on a particular venture is known as particular partnership. This type of partnership comes to an end automatically on the completion of that venture. For example, if two persons jointly get an contract to construction of a bridge, then these two persons may form a partnership to construct the bridge. When bridge gets constructed and it is ready, then partnership automatically comes to an end. इजी सा है। पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए आपने आपस में डील किए। कोई एक क्रिटिकल पेशेंट था, उसको ट्रीट करने के लिए दो डॉक्टर्स ने आपस में डील साइन कर ली, पार्टनरशिप है ना, कि इसको हम मिलके ट्रीट करेंगे। ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना था, दो इंजीनियर्स ने मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हम मिलके इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये क्या होगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होगा आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन के बेसिस पर था। अभी हम लाइबिलिटी के बेसिस पे भी पढ़ेंगे। अभी हमने जनरल पढ़ा है, टाइम पीरियड के बेसिस पे 3 पार्टनरशिप होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, जो इच्छा से चलती है, पार्टनर्स की इच्छा जब होगी तब तक चलाएंगे, इच्छा नहीं तो बंद कर देंगे। फिक्स पीरियड पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होगी, ड्यूरेशन खत्म होते ही बंद हो जाएगी। एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस खत्म हुआ, वेंचर खत्म हुआ और आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? Do you want to ask something? No? Well and good. Have a look. Types of partnership based on liability. If we talk about liability, तो कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है? Only 2 types. Have a look. एक होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जो हमने अभी तक पढ़ी, a simple partnership in which liability of all the members is unlimited. सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लॉस के टाइम पे सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जा सकता है। रीड करके देखिए क्या लिखा हुआ है। The partnership in which liability of all the members is unlimited is known as general partnership, which means if the assets of firm are not enough, creditors can settle their accounts by having claim over the personal properties of partners. अगर फर्म की असेट सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, पर्सनल असेट्स पे, क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स पे भी क्लेम कर सकते हैं। Each partner of general partnership firm can actively participate in the activities of firm. In India, all the partnerships are general partnership firm. ये कह रहे हैं कि हर पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी एक्टिविटी में, और इंडिया में जनरली सारी पार्टनरशिप्स कैसी है, जनरल पार्टनरशिप फर्म से। नेक्स्ट वन, हैव अ लुक, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखिए, सपोज मुझे आइडिया आया दैट आई हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस। मेरा आइडिया है एंड आई हैव अप्रोच 4 ऑफ यू। मैंने आप में से 4 जनों को अप्रोच किया एंड आई हैव आस्क्ड यू टू जॉइन विद मी। आप क्या कहोगे? आइडिया फेल हो गया तो हमारी भी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम होगा? नहीं भाई, हम तो रिस्क नहीं लेंगे, हम तो बिजनेस नहीं करेंगे। कंडीशन समझ में आई? मेरे माइंड में आइडिया आया दैट आई हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस
और मुझे अकेले नहीं करना था, मेरे पास सफिशिएंट फंड नहीं थे, मैंने आप में से 4 लोगों को अप्रोच किया दैट बी विद मी, बी माय पार्टनर्स, और हम क्या करेंगे, मिलके एक बिजनेस करेंगे। आपने कहा यार बिजनेस तो कर लेंगे लेकिन हमें लॉस बेयर नहीं करना, हम तो सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, हमारी बढ़िया काम चल रहा है, हमें नहीं लेना रिस्क। तो आपने मुझे रीजन दिया कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी हमारी, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम होगा, इसलिए हम तो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं बनना चाहते। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में फेस करनी पड़ी। ऐसे में मैंने आपको कहा एक काम करिए, मेरे बिजनेस के पार्टनर तो बन जाइए बट आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, यानी लॉस के टाइम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं किया जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी फ्री है और फिर भी आप बिजनेस का पार्ट है। तो ऐसी पार्टनरशिप को हमने कहा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। 2008 के अंदर ये एक्ट आया और इसके साथ ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आई। क्या होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? हैव अ लुक। The partnership firm in which liability of all the partners except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm. ऐसी पार्टनरशिप जिसमें जिसका आइडिया है उसकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी, लॉस के टाइम पे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे तो क्लेम होगा, बट बाकी सबकी लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड है। इसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहेंगे। इंडिया में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया 2008 के अंदर। कुछ क्वेश्चंस है, वरुण का क्वेश्चन सुनते हैं। यस वरुण। मैम इस ऐसी पार्टनरशिप में प्रॉफिट के टाइम क्या होगा? जब अगर प्रॉफिट हो गया तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? रेशियो हमारा डिसाइडेड होगा, जैसे मैंने आपको 10% का एग्रीमेंट किया तो आपके साथ 10% ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। हमारा पहले ही एक रेशियो डिसाइड हो जाएगा, वी विल डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस, और मैंने आपको कह दिया इतना अमाउंट आपने लगाया है तो प्रॉफिट आपको मैं 10% दूंगी या 7% दूंगी। अब मुझे कितना भी प्रॉफिट हो आपको तो केवल 7% मिलेगा। इज इट ओके? यस युगांश, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम इसमें फिर अनलिमिटेड वाले को क्या फायदा है? उसको तो नुकसान ही है अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम हो जाएगा तो। बिल्कुल बेटा, बट मेरा आइडिया था, मुझे फायदा ये है कि अगर हम पॉजिटिव होके चले, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था तो मुझे दूसरों का सपोर्ट मिल गया। अगर मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, अगर मैं सोल ट्रेडिंग फॉर्म स्टार्ट करती तो मेरे पास 2 डीमेरिट है। तो बेटा म्यूट योरसेल्फ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगर मैं सोल ट्रेडर फॉर्म स्टार्ट करती तो क्या होता? मेरे पास लिमिटेड पैसा होता और साथ में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती। यहाँ जब मैंने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया, अब ये हुआ कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स आ गए। लाइबिलिटी तो अभी भी मेरी अनलिमिटेड है बट मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स आ गए। इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो मेरे काम में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। केवल मैं मेरे बिजनेस की होल एंड सोल हूँ, दूसरों ने तो केवल पैसा लगाया है। अभी देखिए आप एक बार पॉइंट्स रीड करते हैं, फिर और कंफ्यूजन हो तो आप बताना। ये पॉइंट्स डिस्कस कर लें फिर आपको समझ में आ जाएगा। The liability of at least one partner must be unlimited. At least one से ज्यादा की भी हो सकती है, ठीक है। The liability of all other partners is limited up to their capital contribution in the firm. बाकियों को उतना ही नुकसान होगा जितना पैसा उन्होंने लगाया है, पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान नहीं। अब ये थर्ड पॉइंट देखिए, the partners with limited liability are called special partners or limited partners. ये स्पेशल लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स है? स्पेशल पार्टनर्स है। They are not allowed to participate in the management of the firm. ये फायदा होगा मुझे, वो मेरे काम में पंचायती नहीं कर सकता। He is not allowed to interfere in any activity of my business organization. I am the whole and soul of my business and I will be taking the decisions. आगे देखिए, लेकिन उसके पास ये राइट जरूर होगा कि वो मेरे अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है ना, वो अकाउंट्स चेक कर सकता है कि भाई मैं क्या काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। वो अपना शेयर कभी भी विड्रॉ करवा सकता है, मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डेथ से, उसकी इंसॉल्वेंसी या उसके इनकेपेबल होने से। स्पेशल पार्टनर है, मर भी गया तो मेरा बिजनेस नॉर्मली चलता रहेगा, वो मेरे बिजनेस को छोड़ के चला गया तो भी मेरा बिजनेस नॉर्मली चलता रहेगा। उसने चाहा कि बिजनेस बंद कर दो तो मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, मेरा बिजनेस मेरे अकॉर्डिंग चलता रहेगा। बस एक ही बेनिफिट कि कुछ परसेंट प्रॉफिट लेके सामने वाले ने मुझे पैसा दे दिया होगा, वो मुझे फाइनेंशियल हेल्प कर देगा और मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज थोड़े से इंक्रीज हो जाए। अब बताइए, इज इट ओके युगांश एंड वरुण? समझ में आ गया है कंसेप्ट? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।
All right then, well and good. We have completed the types of partnership. अब कल हम पढ़ेंगे types of partners. Partnership एक बड़ा topic है. Varun want to ask something? Yes, Varun, you can unmute and speak. मैम इसमें इसका मतलब जो स्पेशल पार्टनर्स है वो तो बिना रिस्क के बिजनेस कर रहा हूँ. बिल्कुल बिना रिस्क तो नहीं, जितना पैसा लगाया वो तो डूब सकता है. अगर आपने मुझे 2 लाख रुपीस दिए तो लॉस के टाइम में आपके 2 लाख रुपीस तो डूब सकते हैं, ये मैं आपको वापस नहीं चुका पाऊंगी. ठीक है, बट हाँ ये होगा कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं. इज इट ओके? ओके मैम. ऑलराइट, चलिए. तो आपकी ड्यूटी है यहाँ तक की लर्निंग करना. आप देखिए चैप्टर 2 का कितना पोर्शन हमने पढ़ लिया है. यहाँ तक यू हैव टू लर्न द चैप्टर, यू हैव टू मेक नोट्स. आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का फॉर्मेशन. यहाँ तक की लर्निंग करके रखिएगा. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.